हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसकी वजह से बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस बीमारी का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। क्या होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NET भी बोलते हैं। ये बीमारी आमतौर पर बॉडी के किस पार्ट्स में होता है? क्या इस बीमारी का इलाज है? इस बीमारी का ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हम इस बीमारी के इनिशियल स्टेज से लेकर एडवांस स्टेज तक की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इस बीमारी के होने के बाद सरवाइव करने के कितने चांस होते हैं, और आखिर में हम बताएंगे कि एक्टर इरफान खान को किस वजह से कोलोन इन्फेक्शन हुआ। तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, इसमें 3 वर्ड्स हैं। तो बारी बारी से हम समझाएंगे इस तीनों वर्ड्स को। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें न्यूरो है, एंडोक्राइन भी है और ट्यूमर भी है। तो हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे ट्यूमर क्या होता है। नॉर्मली सेल ग्रो एंड डिवाइड एंड रिप्लेस इन आवर बॉडी इन ए कंट्रोल फैशन। ट्यूमर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे कि ये कितने तरह का होता है। It is of 2 types. First one is benign. It grows in one part of the body and doesn't spread in other parts of the body. It is non-cancerous tumor. Second type is malignant tumor. It is a cancerous tumor. It spreads from one part to another part of the body through the blood circulation. अब हम बात करेंगे कि न्यूरोएंडोक्राइन क्या है। This is combination of 2 words. One is neuro and other is endocrine. Word neuro is related with the neuron, that is nerve cell that receive the signals from the nervous system. Another word is endocrine, means a ductless glands which secretes hormones directly to the blood. In brief, neuroendocrine is a system in our body, and this neuroendocrine system is made up of neuroendocrine cell. Now, what is the function of neuroendocrine cell? Neuroendocrine cell behaves like nerve cell, but they also make hormone like endocrine gland. Neuroendocrine cell receive messages, that is the signal, from the nervous system and respond by making and releasing hormone. These hormone control many functions like digestion and breathing. What is the location of neuroendocrine cell in our body? हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ ये neuroendocrine cell पाया जाता है? Normally these cells form gland in our body such as thyroid glands, pancreas and adrenal gland, but also these cells diffusely distributed in all the lining of our organ, but mainly in gastrointestinal tract. अब हम बात करेंगे कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, दिस इज अ कैंसरस ट्यूमर. It is the uncontrolled growth of neuroendocrine cell. Since neuroendocrine cell mainly found in gastrointestinal tract, therefore majority of neuroendocrine tumor formed in GIT. Now, definition of NET according to the National Cancer Institute of USA: a tumor that forms from cells that release a hormone into the blood in a response to a signal from the nervous system. अब हम बात करेंगे कि ये NET जब हमारे बॉडी में बन जाता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है। NET produces higher amount of hormone which can cause many different symptoms like intermittent diarrhea, facial flushing. अब हम बात करेंगे कि इस NET यानी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का मेन फीचर क्या है। NET cell has a somatostatin receptor. WHO के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन क्या है? WHO classified NET based on grade. Grade 1 cell divide at low rate, grade 2 cell divide at intermediate rate, and grade 3 cell divide at fast rate. This is higher grade tumor. It is very aggressive. और अब हम बात करेंगे
कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कितने तरह का होता है सिम्टम और एसिम्टम बेस पर। मतलब कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर फंक्शनल भी होता है और नॉन फंक्शनल भी होता है। Functional neuroendocrine tumor shows symptoms in early stages in which serotonin release that can cause diarrhea and flushing. Non-functional NET, it is totally asymptomatic. मतलब कोई symptom जाहिर नहीं होता। Almost 60% of NET are non-functional. Because of lack of symptoms, NET diagnosed at more advanced stage, that is high grade, and at this stage NET is more aggressive. अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। What is the treatment of NET? According to Dr. Christos Tompanakis, MD PhD gastroenterologist in Royal Free London, NET has various options of treatment. First is the biological treatment, in which somatostatins analog are given, which stop the hormonal symptoms caused by NET. FDA Food and Drug Administration USA has approved octreotide LAR and lanreotide autogel. And second treatment option is cytotoxic chemotherapy. This therapy is used to control the tumor growth in advanced stages of NET. Acetazosin plus 5-fluorouracils are used in this case. Third one is targeted therapy. FDA approved sunitinib, a target protein VEGF used for pancreatic NET. Now fourth option is immunotherapy. Interferon 2B is used. And fifth one is very much important and nowadays is very much famous for neuroendocrine tumor. That is the PRRT, peptide receptors radionuclide therapy. इस थेरेपी में रेडियो लेवल सोमैटोस्टैटिन्स का यूज होता है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स को रेडियोआइसोटोप्स के साथ कंबाइन करके हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स की तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाता है। वो आइडेंटिफाई करके ट्यूमर पर बाइंड हो जाता है सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर के साथ और उसके बाद वहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स रिलीज होता है। उससे एक ऐसा रे, बीटा रे या एक्स रे या गामा रे, और उस रे की वजह से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सेल्स को डैमेज कर देता है। अब हम आइए बात करते हैं बहुत ही कॉमन डिजीज जो कि GIT में होता है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल एनल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस स्पेशल काइंड्स ऑफ NET which occur mainly in GI tract, that is the gastroenteropancreatic NET. Now, according to the journal Annals of Gastroenterology, published in 2013, that is this GEP-NET means gastroenteropancreatic NET is very much rare and complex neoplasm that present many clinical challenges. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor, also known as carcinoid, an islet cell tumor that can occur anywhere in GIT. Now, according to this journal also, the classification of GEP-NET, it is classified in 3 types: foregut NET, midgut NET, and hindgut NET. Now come to the point. What is the survival rate of patient with GEP-NET? GEP-NET अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके सर्वाइव करने के कितने चांसेस होते हैं, हम बताएंगे। सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट विथ GEP-NET डिपेंड ऑन स्टेज ऑन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो GEP-NET या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सेल 2 तरह का होता है।
वेल डिफरेंशिएटेड एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो पेशेंट विथ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब अगर पेशेंट वेल डिफरेंशिएटेड है हिस्टोलॉजिकली, इसका सेल अगर वेल डिफरेंशिएटेड है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, मतलब दूसरे ऑर्गन में भी ये NET स्प्रेड कर चुका है, तो इसके चांसेस जो हैं 5 ईयर्स सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 35% है। और दूसरा पुअरली डिफरेंशिएटेड डिस्टेंस मेटास्टेसिस में इसके सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी चांसेस ओनली 4% है। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन विथ GEP नेट? कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं इस GEP नेट के साथ? अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ गट, a paper published in 2011, morbidity and mortality associated with desmoplasia in midgut NET. NET may also present with complex problem related to mesenteric desmoplasia. It has been reported that 30% of patients with midgut NET are found to have desmoplasia, and this increases as disease progresses. Desmoplasia may cause symptoms secondary to mesenteric artery vein occlusion as well as bowel obstruction. आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी पेशेंट को मिडगट NET होता है और मिडगट NET होने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट के बाद भी एक डेस्मोप्लेसिया डेवलप होता है। ये डेस्मोप्लेसिया क्या है? ये एक ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है। ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से हो जाता है कि उस एरिया का आर्टरी और वेन ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कोलोन इन्फेक्शन भी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जोनाथन स्ट्रॉसबर्ग, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट ली मॉफिट comprehensive cancer center and a specialist in neuroendocrine tumor, he said survival rate in case of aggressive stage in NET is 1 and 1.5 years only. हमने बात किया था ये बीमारी आमतौर पर GIT में होता है। आमतौर पर ये बीमारी एडवांस स्टेज में ही डिटेक्ट हो पाता है, और इस एडवांस स्टेज में हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। इसे एग्रेसिव स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ में सर्जरी भी किया जाता है। और साथ साथ आपको बता दें कि इस बीमारी के रिलैप्स होने के चांस भी होते हैं। हमने बात किया था एक जर्नल के बारे में, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जर्नल के बारे में, जिसमें डॉक्टर कार्लोस ने ये बताने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द सर्जरी एक कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है उस गट में या बॉवेल में, जिस एरिया में जहाँ पर ये बीमारी होती है, और उसे डेस्मोप्लेसिया कहते हैं, जिसकी वजह से बॉवेल के एरिया में वेन और आर्टरी ऑक्लूड कर जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगा तो सेल डेड हो जाता है, और वहाँ पे बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसी बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इस केस में पेशेंट के सर्वाइव करने का चांस भी बहुत कम होता है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस बीमारी ने हमारे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान को मौत की आगोश में ले लिया। आज भले ही बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे, मगर वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।